कौन कहता है कि एक्टिंग लाइन बहुत ही आसान है? कौन कहता है कि शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा होना बहुत ही आम सी बात है? जी नहीं दोस्तों, शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी एक आम जॉब में लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आम जॉब में आपको शायद उतने धक्के ना खाने पड़े जितने धक्के, जितना स्ट्रगल, जितना डाउनफॉल या ये कहें जितना ग्लैमर आपको शोबिज इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। कितनी बार देखा गया है कि हमारे कलाकारों को मिलता है नेगेटिव फीडबैक। कितनी बार हमारे कलाकारों को कह दिया जाता है कि उनको एक्टिंग नहीं आती, उनका वजन ज्यादा है, उनकी शक्ल कैसी है। लेकिन फिर भी हमारे कलाकार जो आज नजर आते हैं आपको लीडिंग एक्टर्स की तरह पॉपुलर टीवी सीरीज में, उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड को फेस करके रादर सक्सेसफुली अचीव करके आज उस जगह पहुंचे हैं, उस मुकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम सब उनके दीवाने हैं, उनके काम की सराहना करते हैं। भले एक ऐसे कलाकार जिनको आप देखते हैं कलर्स के नाम सीरियल पिंजरा खूबसूरती का में, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो इतना टूट गए थे कि उन्होंने मन बना लिया था इंडस्ट्री को क्विट करने का। हम बात कर रहे हैं पिंजरा खूबसूरती का के लीडिंग एक्टर ओमकार यानी कि साहिल उप्पल की। साहिल इसी बारे में खुलासा करते हुए नजर आए हैं और इसी बारे में बात करते हुए वो रिवील करते हैं कि कैसे एक ऐसे इंसिडेंट के कारण जहां पे उनको इतना ज्यादा नेगेटिव एप्रिसिएशन सुनने को मिला था, इतने ज्यादा नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिला था कि उन्होंने मन बना लिया था शोबिज इंडस्ट्री को हमेशा के लिए क्विट कर देने का, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। Actor Sahil Uppal, who is seen currently playing the leading role of Omi in Pinjra Khoobsurti Ka, has also been a part of several popular shows. The actor, who's been receiving appreciation for his acting stint, had once thought about actually quitting the showbiz industry. इसी बारे में बात करते हुए साहिल ने रिवील किया कि कैसे आज वो उस मुकाम पे हैं जहाँ पे हम सब लोग उनको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री में आना, सर्वाइव करना उनके लिए आसान था, तो साहिल कहते हैं, I did face my share of struggles. Without any experience and knowledge of the craft, I had to come to Mumbai to give an acting audition. Hence, faced a lot of struggles. But I took it positively because with each passing day of rejection, I only learned. जब उनसे पूछा गया कि with no entertainment background and no acting classes, how did he actually think about hunting opportunities for his acting stint? साहिल कहते हैं, just like how a person with no entertainment background does. I would daily go for auditions, 5 to 6 auditions in a day, and while returning back, I would check if there are any more auditions happening, either the same day or the next day. If there would, I would be seen walking in them also. जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या थी वो बड़ी वजह जिसके कारण वो इंडस्ट्री को क्विट करना चाहते थे, अपने दूसरे शो के दौरान ही ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया था, तो साहिल इस बारे में खुलासा करते हुए कहते हैं, Well, honestly, it was during my second show of my career, and that show had some amazing actors, and I was the only one who was the new amateur or maybe the newbie out there. I was trying my best, but there was definitely scope for improvement. So on my very first day of shoot, the director lost his calm on me and yelled at me in front of the whole cast and crew. I was honestly numb, shattered. I quietly got back home and broke down. Wrote my first and last journal about that incident. I was so taken aback. I thought that they would replace me. I will have no work and I was badly scared. I prepared my mind to go back and leave the industry for good because I wasn't ready to face that type of treatment ever again. I slept over it. But next day, I did receive my call time and without thinking twice, I wanted to go to the set again and see how it would go this time. Nothing like that happened ever again, but I started working on my craft even more religiously. The incident is still fresh in my mind, one of the memories I would never want to forget. जब उनसे पूछा गया कि क्या उस वक्त के बाद क्या वो दोबारा उसी डायरेक्टर से कभी मिले और अगर मिले तो उनका रिएक्शन कैसा था, तो साहिल रिवील करते हुए कहते हैं, Almost 2.5-3 years later, I was in the same premise as the director. He approached me and praised me for my work I was doing, for my better acting skill. I felt really emotional. No grudges against him. His scolding made me strive to learn and work even more harder than what I did. जब उनसे पूछा गया कि वो एस्पायरिंग एक्टर्स को या उनसे क्या कहना चाहते हैं जो इस एक्टिंग फील्ड में अपना करियर, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, तो साहिल कहते हैं, I believe in learning that this is what I would want to tell the newcomers. Yes, there will be hopeless days, rejections, loneliness of spirits, but one day it will all become the part of your journey. Just take everything positively. Be patient. Work on yourself. Work on your acting skills and do not give up. क्योंकि एंड में अगर कुछ नहीं ठीक होता दोस्तों तो वो एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। well, साहिल अपने इस कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड करते हुए हर उस न्यू कमर को, हर उस न्यूबी को, हर उस कलाकार को जो ये सपना देखते हैं एक्टर बनने का या शोबिज इंडस्ट्री में आने का, उनको बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच देते हुए नजर आते हैं। लेकिन साहिल ने अपने इस पूरे मैसेज के जरिए ये भी कहा है कि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल जरूर है, लेकिन आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी। और आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि साहिल के इस बड़े खुलासे के बारे में, अबाउट हाउ ही रियली वांटेड टू क्विट द एक्टिंग इंडस्ट्री एंड हाउ ही चेंज्ड हिज माइंड ओवर सच अ ह्यूज डिसीजन। आप क्या कहना चाहेंगे? Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.